उतनी अच्छी एक्ट्रेस भी है, तो जोरदार तालियां। शुक्रिया guys. How are you all? Excited? नहीं सुनाई दिया यार. Excited? There you go. क्योंकि 90% लड़के ऐसे देखते हैं। अरे एक्साइटेड तो दिखाओ ना। अच्छा मृणाल, I need to ask you because I know you from many years, and what a fantastic actress she is on television, in films both. But when you got to know that I'm going to be sharing the screen with one of the finest male actors India has seen, Shahid Kapoor, what was your reaction? सारी लड़कियां तो jealous होने वाली हैं. हाँ. लेकिन जब मैं शाहिद से मिली तो I kept looking at him like, यार आप तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे जब भी मेट में थे, जैसे सारे फिल्म्स में. He's like, हाँ मैं तो वैसे ही हूँ. And I came like dancing and I was like hopping and I couldn't like believe that I'm going to share my screen space with him. Shahid, the entire world loves you and I love you and everybody knows that. Yes, we do. तो एक्चुअली एक काम करते हैं कि आई एम गोइंग टू चेक दिस फैक्ट विद शाहिद हिमसेल्फ कि क्या एक्चुअली तुम्हारे अंदर की गीत बाहर आ गई थी जब तुमने शाहिद को देखा था. एंड लाइक शी राइटली सेड, एवरी टाइम आई हैव सीन हिज फिल्म्स आई हैव सेड दैट थैंकफुली वी हैव एन एक्टर लाइक दिस. तो एक बार जोरदार तालियां फॉर आवर फेवरेट शाहिद कपूर. और अब लड़कियां हु सब कर सकती हैं. यंगस्टर को चांस देंगे तो उनका करियर बनेगा एंड दे विल गेट टू प्ले फॉर इंडिया. हाँ, किसको चांस देना है? ये माइक पे आ रहा है आपका चांस. Ladies and gentlemen, Shahid Kapoor. Come on. Welcome, sir. Well, thank you so much, everybody, for being here today. This is a cute little event called Jersey of Dreams that we have put together today for a film that really is a dream of ours, which is coming true after 2 years. We started shooting this film 2 years back. We finished it last year in December, and finally it's out to release on the 31st of December worldwide, some places on the 30th. And we can't believe that we're in a theater promoting it, and it's almost home. So we're really excited to bring this baby home. We're really excited that all of you are here participating and supporting us. I really always feel a lot of fraternal love. मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग इतने टाइम से नहीं मिले, इतने वक्त बाद हम मिल रहे हैं, and we're doing what we all love doing, what we have been doing all our lives, and I feel blessed to be here. So thank you so much for this wonderful welcome. Thank you, Mrunal, for your amazing words. Thank you, my friend, for saying such nice things about me. Thank you. I know you were paid for it, but hopefully Actually, I'm not. some of it came from your heart. but we're really happy to be here and share this film with you. And there's going to be some musical stuff happening tonight. I'm very excited to listen to the songs live. I've never done that before for a film of mine, so I'm very excited about that. We have a really beautiful little thing to do with something which is very iconic. It looks very simple, a jersey, but it has a man's entire life in it. When you get to wear it for the first time as a sportsman, it's a certain honor that you feel. I don't know how much of you have seen those moments when, a new player is given the cap and then he gets his uniform for the first time, and if you just look really hard in his eyes, आपको दिखाई देगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी उस वक्त उसके दिमाग में घूम रही होती है. So ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, और ये फिल्म भी बहुत ही पर्सनल और इमोशनल और ह्यूमन फिल्म है, and we hope that you feel what we felt while making it, and thank you again for calling me on stage and having me. Do you guys agree? Do you guys feel the same? Come on. All right. तो एक और चीज़ है जो इस फिल्म के बारे में बहुत स्पेशल है, और वो है इसका म्यूजिक. एंड आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज आई एम अ रेडियो होस्ट. मेरे यहाँ जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो आजकल सिर्फ और सिर्फ जर्सी के गानों के लिए आ रही है. बट आई एम गोना टेल विच इज़ माई फेवरेट सॉन्ग. बट मुझे इन दोनों से पूछना है कि आप लोगों की गाड़ी में आजकल जर्सी का कौन सा गाना ऑन लूप बज रहा है? मेरी गाड़ी में माइया मैनू गाड़ी में बहुत बजता है. वर्कआउट करते हुए महरम बजता है, और थोड़ा ऐसा डांस करना होता है और इजी फील होना होता है तो बलिए बजता है. ओके. और जब थोड़ा इमोशनल मूड में होता हूँ तो जिंद मेरी है, जो अब शायद आज लोग सब सुनेंगे पहली बार वो बजता है. Yeah. तो मेरे मन में पूरी एल्बम बजती है. पूरी एल्बम बजती है. ऑलराइट. आई हैव आल्सो हर्ड दैट आप गाते भी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. बट मृणाल, व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम? See, this is the first film of mine जहाँ songs इतने पसंद किए जा रहे हैं, and I'm collaborating with Sachit and Parampara for the first time, and they're fabulous. उन्होंने दिल जीत लिया यार. सारे गाने just pierces right here.
लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे छुआ है वो है महरम. और आई थिंक दैट सॉन्ग इज़, you know, when you wake up and you put this music on, you put this song on, there's this fire that just ignites within you, and no matter how bad day you're having, no matter what is going on, that song just cheers you up. And मुझे लगता है हम सबको वो एक गाना ऐसा चाहिए होता है which would just like ignite the fire within us. So Mehram for me, and Baliyere when, you know, I'm in the car and, you know, I'm working out. So yeah, it's a lovely album, and I कोई ज़्यादा फेवरेट या कम फेवरेट नहीं है. वो सारे सॉन्ग्स मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं क्योंकि बहुत करीब है मेरे दिल के ये सॉन्ग और ये फिल्म. और आई जस्ट होप दैट यू गाइज लाइक इट टू. And just before we start, मैं सचेत और परंपरा, where are you guys? हाँ, छुपे हुए हैं. The stars of the evening are waiting backstage. Don't worry, we're going to introduce you, make you sound amazing. But I just want to say this about Sachet and Parampara. You know, they were supposed to do music for one of my films and that didn't work out. And they had some very good friends in Siddharth and Garima who are writers and very good writers who've also written all the dialogues of Jersey, who told me to meet them one time. They said कि यार आप उनसे मिलिए, नए लड़का लड़की हैं, बहुत talented हैं. And so that's when I was introduced to them. And since then they did 2 songs in Kabir Singh, Bekhayali, which I'm sure you all have heard, and Mere Sonia, which were 2 beautiful numbers. और अब इस फिल्म में पूरी एल्बम वही कर रहे हैं. और सचेत ने तो गाने भी नहीं दिया किसी और को, पूरी एल्बम खुद ही गा लिया. नहीं, बट एक्चुअली बड़ी फनी चीज़ थी कि ये मुझे कॉल करके कहते रहता था कि यार मैं ना किसी और की आवाज़ कर लेते हैं, हर गाना मैं कैसे कर सकता हूँ. एंड आई यूज्ड टू से बट इट्स साउंडिंग सो गुड, हाउ कैन वी यूज somebody else, you know. So congratulations to Sachet and Parampara. They've been We absolutely you know, they are love and new adore you. kids and they are very talented. और you know, ये अक्सर हो रहा है कि हम ज़्यादातर रीमिक्सेस ही देखते हैं या रिक्रिएटेड सॉन्ग्स ही देखते हैं. यू नो, दे आर क्रिएटिंग सम रियली गुड ओरिजिनल म्यूजिक. सो अ बिग शाउट आउट फॉर सचेत एंड परंपरा. Yo! It's a vibe. Alright, so this is a special gathering क्योंकि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, for the first time you will experience the music of the film live. और एक गाना है जो यहाँ पर ब्रेक होगा पहली बार. अभी तक उस गाने को कहीं पे भी किसी ने भी नहीं सुना है. For the first time on digital platforms and on radio, that song will break after you guys have heard. तो basically आप लोग हो जो उसको experience करोगे पहली बार. How excited are you? Very excited. Alright, तो अब एक 2 लोग हैं जो ये 2 लोग सो रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं. पॉपकॉर्न खिलाओ इनको, समोसा खिलाओ. हाँ, समोसा और चाय. हाँ, देखो चाय खुश हो. देख- जैसे ही मैंने समोसा बोला दोनों ऐसे किधर से आ रहा है? कौन ला रहा है समोसा? आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम होगी ना थिएटर में आके, जब तक समोसा नहीं आता, थोड़ा पॉपकॉर्न नहीं मिलता है ना, वाइब नहीं आती ना. खिलाएंगे हम आपको दबा के. कितने खा लेते हो आप एक टाइम में? 12? कौन बोला 12? कौन बोला 12? कौन बोला? ये इसने बोला होगा. हाँ, अरे सबने मास्क पहना, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है. नो बट या samosas will happen. Aman, samosas have to happen, bro. कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, समोसा. समोसा ठंडा नहीं होना चाहिए ब्रो. यार डायलॉग बोल दिया फिल्म का, इस पे तो ताली बजाने. लाइव हुआ है. हाँ, ऑलराइट. नाउ जितने फोन्स पे तुम लोग वीडियो बना रहे हो, आई नो तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड पे 2 लोग हर जगह से दिख रहे होते हैं, उनकी रील्स हर जगह से आ रही होती है. और मृणाल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि ये दोनों तुम्हें मिले थे एंड दे वर फेकिंग देयर रिलेशनशिप, दे वर फेकिंग दैट दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप. ऐसा कुछ था ना? कौन दोनों? ये सचेत और परंपरा. मैंने उनसे पूछा था. They said I think they were not ready to accept that in public. हाँ. But then 1 महीने बाद and they were married. I was like, ये मैंने सही पकड़ा था. मैं This is जेन्युइनली right. बोल रहा हूँ, इनको क्लियर नहीं था कि इन्हें क्या बनना चाहिए. क्या हम दोस्त बन जाएं या हम भाई बहन बन जाएं, भाई बहन भाई हम मियाँ बीवी बन जाएं. सो आई थिंक इनकी रिलेशनशिप में ये तीनों दौरों से गुजरे. और एक दिन मुझे लगता है परंपरा ने नहीं प्रपोज किया होगा, सचेत तो प्रपोज करने का चांस ही नहीं है. हाँ, भाई बहन. तो एक्चुअली वो जवाब हम इनसे यहाँ पर बुला के लेते. गाइस पुट योर हैंड्स अप फॉर सचेत एंड परंपरा. उन दोनों की केमिस्ट्री उनकी आवाज में झलकती है. ऑलराइट, तो अब आप बताना चाहेंगे कि भाई बहन या पति पत्नी? अभी भी दोस्त हैं. आई थिंक सबसे अच्छा रिलेशन यही होता है दोस्ती का मेरे हिसाब से. और मतलब बेसिकली यही होता है, लड़के दोस्त दोस्त बोल के लड़की को पटाते हैं. हाँ, इसने भी वही रूट पकड़ा, हम तो दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त हैं. अच्छा कॉफी पे चलेंगे क्या?
Well done, Sachit. Well done. अरे sir. नहीं, but I think I'm really lucky to have her in my life. और उसके बाद तो चीज मतलब she completes me totally. वो तो सर आप जानते हो कितने सेटिंग मतलब यार हम जर्सी के प्रमोशन के लिए आए हैं, यहाँ सिर्फ तेरे रोमांस का ही चलने वाला है। कितने एवरीबॉडी ओह सो स्वीट। Guys, are you all excited to listen to the songs live? Yes. Very, very, very excited. All right. So Shahid and Mrinal, are you excited to experience their music Yeah, live? we want to go back and sit on our seat and we want to enjoy this like everybody else. We're really excited. We'll let you do Just that, allow us. and Thank we'll you have so Shahid much. and Mrinal back up on stage. But now, Sachet और All the best, परंपरा guys. Have Thank you fun. so much. तुम लोगों के लिए लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हो, और जब भी कोई म्यूजिशियन लाइव परफॉर्म कर रहा होता है, मेरा एक रूल है कि तालियां और सीटियां बिना कंजूसी के बजने चाहिए. Alright guys, a big round of applause for Sachet and परंपरा. और जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी यूनिक इवेंट, क्योंकि आज यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गाना जिसका वीडियो भी अभी तक बाहर नहीं आया है, कोई गाना जो कहीं किसी ने नहीं सुना है, वो ऑडियंस ने पहली बार एक्सपीरियंस किया लाइव विद द कास्ट एंड द म्यूजिशियंस. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एल्बम और दिस फिल्म फॉर मी इज इट्स 100% ओरिजिनल. यू नो, आज जहाँ पर फिल्मों में बहुत सारे रीमिक्सेस बनते हैं और वो क्लब्स और रील्स के लिए बनाए जाते हैं, दिस इज एन एल्बम विच इज 100% ओरिजिनल, और उसके लिए आई थिंक दे डिजर्व so much of love and so much of applause. लेकिन अभी एक स्पेशल चीज बाकी है. क्या है, कल रात को मैंने जैसा बताया था, मुझे सपने में मृणाल दिखी और कहने लगी कि शार्दुल मैं तुझे याद कर रही हूँ. तो मैं सुबह उठा, मुझे बोला इधर आना है. मैंने कहा ये सपना तो मेरा पूरा हो गया. ऑलराइट गाइस, मैं अब तुम्हें एक स्पेशल चीज बताऊं. आज यहाँ पे आप देख सकते हैं हैशटैग जर्सी ऑफ ड्रीम्स हम लोग अनवील करने वाले की एक बहुत स्पेशल चीज है. यू नो, आप सबने सपने देखे होंगे. जैसे वो दीदी, आपका नाम क्या है? सिमरन. अरे वो शाहिद के सपने देखती तो मुझे तो दीदी बोलना पड़ेगा ना. उन्होंने सपना देखा था कि शाहिद सामने आए, आ गए. मैंने सपना देखा था कि मृणाल आए, आ गई. ऐसे आपके बहुत सारे सपने होंगे, राइट? और वो सपनों के बारे में दिस मूवी इज. वो सपनों को पूरा करना, उसके लिए पैशन, उसको फाइट करना, उससे स्ट्रगल, एवरीथिंग. नाउ दिस इवेंट is going to be happening in Mumbai, Bangalore, Ahmedabad, Pune, Amritsar, Mohali, Ludhiana, Gurgaon, Bhubaneswar. But तुम लोग ऐसे करके जा सकते हो क्योंकि पहले तुम थे. तो तालियां. सर, सबसे पहले प्रोड्यूसर तो बाद में बात करेंगे क्योंकि इन्हें बहुत पैसा कमाना है. आपसे हम बात करेंगे. आप सर, आपसे तो मैं पूरे दिन भर बात कर सकता हूँ. तो अपने टिकट ले ले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, 50 साल पूरे हो गए भाई सिनेपोलिस को. Thank you, Shardul. How excited are you to have Jersey event at Cinepolis on the day जब आपने 50 साल कंप्लीट किए हैं? मतलब आपने नहीं. Very excited, and I was just thanking Shahid and Aman to bring the film in theaters. And COVID के बाद theaters बंद थे और अभी चालू हुए. Yeah. It's a very big film. Audience are very excited, हाँ. and especially to see Shahid again after Kabir Singh. क्या बात है, कितने लोग एक्साइटेड हैं? We are also very excited, and I think कि जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे आई, आज तो तुम लोग फ्री में आ गए, अगली बार पैसे दे के आना, ठीक है? All right, and now पैसे से याद आया, प्रोड्यूसर कितने खुश हैं आप यहाँ पर आज? Because see, you know, during COVID, you didn't get a chance to meet. This is the real thing जिसके लिए हम लोग मूवीज या कुछ भी करते हैं. They were going crazy. Concert feel आ गया था वहाँ पे, लोग मोबाइल शुरू कर करके. Yeah, how? What is it that you want to say to everybody out here? No, we're very thankful that हम पहुंच सके हैं सिनेमा तक अभी तक, and we're very happy that you guys are here to experience the whole film with us, and in 7 days we'll be here on the screen. Okay, so what was your biggest dream? Biggest dream is just making movies. Just making movies. That's it. All right, I'm going to ask them their dreams because you know अभी सबके सपने बाहर आएंगे. Mrinal, what has been your biggest dream? Shardul, you know what my dream was. Half is complete. The fact that I'm standing here on this stage promoting my film with Shahid Kapoor, with Aman, is my dream and it's coming true. So I am not just surviving, I am living my life. I'm living my dream. सर, आपका सबसे बड़ा सपना क्या रहा है आज तक? ऐसे एक चीज़ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इस मंच पे जर्सी को प्रमोट कर रहे हैं और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है, इसलिए इस फिल्म के अंदर एक बात है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम अमूमन, क्योंकि मैं 17-18 साल काम कर चुका हूँ, मैंने आई थिंक 35-40 फिल्म्स की हैं,
उनमें से शायद 14-15 चली होंगी, 20-22 नहीं चली। उनको लोग ऐसे भूल जाते हैं, you know। लेकिन उस फिल्म के पीछे जितने लोगों ने मेहनत की होती है, जितने लोगों ने काम किया होता है, जितने लोगों की रोज़ की मशक्क़त होती है, करेक्ट। वो लोग भूल जाते हैं। वो लोग जब एक टीम मैच खेलती है और 2 रन से हार जाती है, तो जब वो वापस जाती है तो उनको हल्की सी ताली भी नहीं मिलती है, यू नो। क्या उन्होंने कम मेहनत की? क्या उनकी कोशिश कम थी? क्या वो वर दे नॉट वर्किंग विद द सेम स्पिरिट एज दे हैड वर्कड अर्लियर, यू नो। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आएंगी जो अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती हैं, हम सब करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो कोशिश को सेलिब्रेट करती है, ब्यूटीफुल, जो ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है, जो एक इंसान के अंदर की जो प्योर फीलिंग है उसको सेलिब्रेट करती है। और मैंने इस 18-19 साल में यही सीखा है कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कौन सा दिन अच्छा जाएगा, कौन सा दिन बुरा जाएगा। लेकिन आपने पूरे दिल से कोशिश की क्या? क्या आप सोने से पहले अपनी शक्ल शीशे में देख के कह सकते हैं कि यार मेरे अंदर जो भी था मैंने सब दे दिया? खुशी उसमें होनी चाहिए। करेक्ट। और एक्चुअली सेलिब्रेशन के वर्दी वो चीज़ होती है। सो टुडे आई वांट टू से दैट दिस फिल्म इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। पिछले 2 साल हम सब ने बहुत मुश्किल देखी है, और हम सब चाहते हैं आज की तारीख में कि हमें फिर से मौका मिले जाके वो सब करने का जो पिछले 2 सालों में हमारे हाथों से छूट गया वो चीज़। और यही होता है, यू नो, जवानी में भी ऐसा होता है कि आप चीज़ों को यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको ऐसा लगता है यार ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, यू नो। अगर 10 लोग होते हैं उसमें से 9 लोगों की ज़िंदगी सफल नहीं होती, सिर्फ एक इंसान सफल होता है। तो क्या उन 9 ने मेहनत नहीं की थी? क्या उन 9 के लिए ताली नहीं बजनी चाहिए? क्या उनकी कोशिश में उनका दिल, उनका खून, उनका पसीना नहीं था? तो ये फिल्म जो है ये कहती है आप जीतें ना जीतें लेकिन कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यू वॉन्ट टू मेक योर ड्रीम, दैट इज़ द ड्रीम। The dream is to wake up and do what you love with all your heart every day, and that is what must be celebrated. क्या बात है सर। मैं कह रहा हूँ ये आदमी बहुत अच्छा बोलता भी है, दिमाग भी बहुत अच्छा है, एक्टर के साथ साथ राइटर भी अगली फिल्म के लिए साइन कर लो। सो थैंक यू सो मच। जिंदगी भर इनको साइन कर चुका हूँ सबके लिए। So Mr. Mayank, thank you so much for being here with us, and congratulations once again on Cinepolis completing 50 years. Thank you, thank you. अब आप देखिए खुद वहाँ बैठ के कि कैसे पिक्चर है तो दर पैसा कमाएगी और आपको भी पैसा मिलेगा। And now what we are going to do is we are going to unveil the jersey of dreams. जैसा कि शायद ने कहा, कोशिश, सपने, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक वी आर नथिंग विदाउट आवर ड्रीम्स, यू नो। लाइफ वुड बी नथिंग इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स। एंड टुडे Jersey is going to get you guys to be a part of Jersey. मूवी तो है ही, लेकिन आप लोग हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे, where we unveil the jersey of the dreams for the first time. तो जब भी कोई पहली चीज़ होती है तो तालियां जोरदार बनी है ना। पहली बार जब प्यार होता है तो पागल हो जाते इंसान। तालियां, come on. All right, so first of all, I would request obviously the 3 of you to do this and unveil the jersey of dreams, because guys, for the first time this is happening, that the cast of a film is unveiling the jersey of the dreams in front of all of you. सबसे पहले हम शायद से रिक्वेस्ट करेंगे दैट यू नो वो अपना सपना यहाँ पर लिखें, एंड देन आई विल इनवाइट अदर पीपल आल्सो। तो शायद कैन वी हैव यप
is the dream that Mrinal and Shahid have, and I would request other people also to be a part of this later. But right now we are going to let the press have their day because वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे फोटो हाथ दिलवा रहे हैं फोटो ले लीजिए आप फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं All right, we are going to begin with the Q&A with the press. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं. We have sent a mic there. Please raise your hands if you have any question. Hello. Is it okay? Yeah, you're audible. Hi, Shahid, Mrinal, and the entire team. Hello. Hi, this what's is up? Vaishali Chandra from Alpha World. Hi Vaishali, how are you? Firstly, thank you. The music is amazing. Already playing it on loop, and I'm so happy to be here. We were not expecting it to be this great and amazing, like a concert. So thank you so much for that. And I would like to know, when the music was created, you were a part of it, like Sachit and Parampara were mentioning. At any moment you were like, "Arey, 3-4 gaane aur hone chahiye. This is not enough. We need more." Hi, first of all, how are you? And thank you so much for all the wonderful words about the music. And all the credit should go to Sachit and Parampara. And even this whole, live concert vibe, which I was feeling like, मुझे नींद से उठा के कोई ले आया and I'm like बहुत मजा आ रहा है लेकिन I was not prepared for this, So thank you for that. It was an amazing little thing, and it was so much fun to see everybody enjoying themselves and participating. So thank you all for being a part of this really cool little evening that we're having. Jitni mil rahi hai khushi se le lo. You never know what's going to happen tomorrow. Let's enjoy it while we can, right? True. The thing with music and dance is that I feel that they are a wonderful part of movies, but they should never intrude in the process of storytelling. So in fact, I haven't, for example, danced for over 6 years now in a movie. I haven't. Because I used to feel in the first part of my career that a lot of people would force a song or a situation into the film which was not, which was not right for the film, but just for effect, And so music also in this film being a sports drama and a human drama, there was very limited scope for music. But within that limited scope, we wanted to create songs that will bring a smile to people's face, that will remind people of the film, because the lyrics and the music of the film are pretty much the first feeling that you get when you watch a film trailer. The sound really stays with you. And Mehram was that song for us, Mehram Tu Hi Hai Mera. I don't know how many of you have paid attention to the lyrics, but Mehram is actually, usually you're used to listening to a song which is all about like, we can do it, we are going to win, that kind. But this is actually a love ballad. It's a love ballad between man and destiny. And he's telling his destiny that I'm okay to accept everything you give me, but I want you to come here and live with me to understand how I feel when you throw all those difficulties at me. So I think it's a very beautiful interpretation to what a person feels when they lose, what a person feels when they struggle and when they don't get what they work so hard for. And how difficult it is to be in that situation. And I've been there, I've been in that situation so many times where I have felt disappointed and emotional and broken and, lost. I'm sure all of us feel like that. So Mehram is that song for all of us
to make us believe, because it's a very uplifting song, and that is what's true for this film as well, that it will never run. You know, कई बार क्या होता है, हम फिल्में बनाते हैं, हम फिल्मों में सिर्फ ना खुशी 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 दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग तो देखना ही नहीं चाहते. ऐसा नहीं होता. लोग हर चीज़ देखना चाहते हैं, लेकिन they want to feel uplifted. You don't want to depress them, you don't want them to be sad, you know. And that's the thing with this film and the music of this film, that it's very emotional, it's very intense, it's very passionate, but it's uplifting. So we wanted Mehram to be a song which, even though it's talking about things which are, you know, emotional, it should make you feel, you know, uplifted and make you feel motivated. And that's what the film is about, and that's what Mehram's about, and that's what the music of this film is about. Especially Jind Meri Hai also, you know, it's a very hopeful song. It's a song full of hope and beautiful thoughts, you know. So yeah. Can I ask one more question? Shahid, my another question is, you know, like we see the relationship between a son and a father. So, you know, after we become parents, you know, after you became a father, I mean, we have seen your journey. We push harder, you know. So, is that with you as well? When your first baby was born, then your second baby was born, you're already successful actor, but now is it like, I want to push harder, I want to, already you are at the top, but it's like, what beyond? Yeah, you know, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप पेरेंट बन जाते हो तो यू नो उससे पहले आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो. यू वांट टू सी योर सेल्फ अ सर्टन वे, यू नो, यू हैव अ ड्रीम फॉर योर सेल्फ कि मैं एक दिन यहाँ पहुँचूंगा, मैं एक दिन ऐसे करूँगा. आफ्टर यू हैव योर चिल्ड्रन, मेरे मन में वो थॉट चेंज हो गया है कि हाउ विल माई चिल्ड्रन सी मी, you know, how will they feel about me 10 years down the line, 15 years down the line, when, you know, what I do today, I will be reminded of that 15 years down the line, 20 years down the line, जब वो बड़े हो जाएंगे, when they'll be adults and they'll look back and see me at their age or at an age which they're going to reach. Will I be a good example? Will I be somebody they'll look at and you know, because बच्चे बहुत impressionable होते हैं, you know, तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना तो बच्चे उसको emulate करते हैं. It becomes very important as a parent to, you know, make them see the right things. तो मेरे मन में हमेशा यही होता है that, you know, I don't give a wrong example to my kids. I hope that they take away good things from me. And you can't, you know, you can't become perfect. We're all imperfect. Or being a parent is रोज सीखना पड़ता है, you know, to be a parent. And you really feel every day that I didn't know I was signing up for this. बड़ा मुश्किल होता है. But your heart is with them and how they see you becomes very, very important. तो इस फिल्म के अंदर एक लाइन भी है, you know, जब अर्जुन कहता है कि अपने बेटे की नज़रों में मैं इससे एक कतरा भी कम मैं होड़ नहीं देंगा, you know. And I could feel it so deeply because I know how much it means to me, how my children look at me. It's so important for me, you know. So they lift your spirit. Yeah, they are my spirit. I tell my son and my daughter that, you know, when my daughter was born, I used to say, you're in my heart. And then I had two, so I was like, abhi main heart ko divide kaise karu? So I told her, I said, you know, you have the right side of my heart and Zen has the left side of my heart. So they're in my heart all the time, you know. Thank you. Hi, Shahid. Yeah. Hi. What's up? Hi, Shahid from Mumbai Masala and Bollywood Kadam. So everyone has a dream. We are talking about your dreams. So everyone has a dream of marathon, Oscar, or Filmfare, you know, or something like that. But is there any dream which is incomplete for you and you journey of the dream? I think life is a dream, man. And you know, the beauty about life is till the day you live it, it's incomplete. And you can fulfill whatever you want to do. It's never too late. You can take your life and mess it up completely and be at the lowest point in your life. But you know what the beauty is? Till you're alive, you can turn that around and walk right back into the middle of life and do the best that you can. And I think whatever age you're at, if you just have that kind of a spirit and that kind of a thought, that if I decide to start moving in the right direction today, I'll get there. You know? And life's not easy. It's full of so many challenges. And it's long. You know, you have 365 days in a year. Every day you wake up and you have to live that life. Why waste it? Live it the way you want to live it. Be a part of your own life. A lot of the times, you know, time निकलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है, हमें लगता है हाँ बस हो रहा है, and then sometime we realize we didn't do anything with all this time, and then you don't have any time left. You know, I feel like that. मेरे, you know, थोड़े बाल मेरे grey होने जब शुरू हुए थे, तो मेरे को ऐसे देख के लगता है, I was like, shit man, I got some grey hair now. Man, the best years of my life, are they behind me?
So you feel very motivated. The younger you are, the less you respect time. The older you get, the more you respect time because you know you have less of it. That's just human nature. But is there any dream which is not completed yet, or you're yet to achieve? अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Mrinal, and what about you? Mrinal? I want to be known as an all-rounder, a versatile actress, and जो किताब है वो बस पाना एक दिन. I want to explore all the kinds of genre and roles, and that's my dream. Every day I wake up, आज कुछ अलग करना है. But I don't know what. So I'm still looking for it. I'm still working hard. I'm making sure that I take one day at a time. There are days where I want to give up, but having said that, versatile, that's what I want to be known as. So I'm just working towards it. Thank you. शायद आपने अपना अभी तक ड्रीम बताया नहीं. I'm assuming कि आप बताने में बिलीव नहीं करते, अचीव करने में बिलीव करते. I would like to end. नहीं, मेरा ड्रीम ना ऐसा, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कोई भी है मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड लिव योर लाइफ, ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ इक्वली पैशनेटली. जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं उनको अपना पूरा टाइम दीजिए, भूल जाइए काम के बारे में. जब आप काम में हैं तो काम में मगन रहिए. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दुनिया देखिए. अगर आप घर पे बैठे हैं तो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए. Everything in life is an opportunity. So I just want to live life to the fullest and feel that I experienced everything that I could. That's my dream. That's really my dream. Can I add something? It's my To my dream or your dream? My dream. You can add to mine also. I'm melting. मैं भूल गई. क्या बोल रही थी मैं? हमारा ड्रीम है ना 31 दिसंबर, साथ में ही तो है वो. It is our dream, and ले वो रो रही है. लोचन रोने लग, मेरी बहन रोने लग गई. लड़की काम ये वाली जो भी काम करती है, इसके पास एक बहन है जो इसको देख के बस रोती रहती है. आई विश मेरा भी एक सिबलिंग होता है. ईशान तो एब्स बनाते रहता है अपने पूरे टाइम. मेरा भी एक सिबलिंग होता है जो पूरे टाइम मेरे पास रहता. तो कितना अच्छा कर रहा है तू, हैं? वो मुझे क्रिटिसाइज करते रहता है. भाई आई थिंक यू नीड टू दिस फिल्म थोड़ा इंटेंस है वो. But I miss him in all these moments. I miss him. Yeah. Hi Shahid, you're Shadma from Home Bollywood. You're. Hi. Yeah. Hi. Hello. So Yes. Hi. as we know, you were the part of when the music were been made. तो आपसे जानना चाहूँगी कि कबीर सिंह वाली जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा दे रहा है. गाना में भी कहीं ना कहीं हमने देखा. वॉज देयर एनीथिंग इन टू योर माइंड व्हेन यू ऑल वर क्रिएटिंग द म्यूजिक कि हमें मतलब वैसा कुछ वाइब देना है? एक्चुअली अगर आप इस फिल्म का जॉनर देखें और अगर आप इस फिल्म की क्या है, अभी आप लोगों ने थोड़े बहुत प्रोमोज देखे हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक फिल्म की छाप जो है वो रह जाती है. तो मुझे भी ये फ़नी लग रहा है कि यार लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है. बट देन इट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट कि शायद people still have that connection with the character of Kabir, so उसकी झलक, because हूँ तो मैं ही, तो कहीं ना कहीं तो झलक दिख जाएगी, चाहे मैंने अलग कपड़े पहने हो, बट फेस तो वही है. सो एक्चुअली इस फिल्म की ओरिजिनल फिल्म जो थी, हमारे जो सिलुएट्स हैं वो वैसे ही हैं और म्यूज़िक तो सचेत परंपरा की है, तो उनकी आवाज़ है और डेफिनेटली रॉक सॉन्ग है. जैसे बेख्याली वॉज ऑल्सो इन द जॉनर ऑफ अ रॉक सॉन्ग, मेहरम इज़ ऑल्सो इन द जॉनर ऑफ अ रॉक सॉन्ग. बट दोस्त U2 जैसे अगर आप देखिए उनकी रॉक म्यूज़िक होती है तो वो तो उसी तरह की म्यूज़िक पूरी ज़िंदगी बनाते हैं. माइकल जैक्सन की म्यूज़िक माइकल जैक्सन की लगती थी. तो एक फ्लेवर होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक स्पेस होती है जैसे आप कुछ क्रिएट करते हो, तो वो तो हमेशा रहता ही है. बट द इमोशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी इज़, I mean, when I did this film, I was like, this is a complete 360 to what I have done because बहुत बैकफुटेड पर्सनैलिटी है इस कैरेक्टर की. बट हाँ, मैं नहीं चाहता था कि दो तरह के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो लाइफ में गिव अप कर चुके होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो लाइफ जी रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर आग होती है. तो मैंने हमेशा यही सोचा था कि अर्जुन के अंदर आग तो बहुत होगी, नहीं तो वो इस उम्र में ऐसा थॉट सोच ही नहीं सकता. लोग गिव अप कर देते हैं, दे आर वेरी पैसिव अबाउट देयर लाइफ. सो वो आग, वो इंटेंसिटी, वो पैशन इस कैरेक्टर में है और शायद वो इंटेंसिटी शायद कबीर सिंह के कैरेक्टर में भी फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस थी.
So maybe that's drawing some similarities. But you know, please इस फिल्म को मौका दीजिए. जब आप 2.5 घंटे की फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. You know, तब तक तो वही यादें ताज़ा होंगी जो आपको अभी अभी आपके मन में हैं, या if you're connected with something. But the intention was never to do anything similar, because जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नया करना है. एंड ऑल्सो मृणाल एंड आपसे दोनों से एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू मेक अ रीमेक, यानी ये ऑलरेडी साउथ में फिल्म बन चुकी है, तो हाउ तेलुगु बोलिए ना, आप साउथ बोलती हैं. तेलुगु में. सो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एन आर्टिस्ट टू एक्ट इन दैट फिल्म, बिकॉज यू नो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ परसेप्शंस बन जाते हैं उस फिल्म को देखकर. तो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एन आर्टिस्ट टू एक्ट इन सच फिल्म्स. You know, I would like to thank my director गौतम सर उसके लिए, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कास्ट किया एज विद्या, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मृणाल, आप सारा नहीं है, विद्या है, तो आप इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से प्ले करिए. तो जब आप सेट पर जाते हो, जब आपका डायरेक्टर आप पर इतना फेथ और उम्मीद लगाए, यू नो, व्हेन ही एक्सप्लेन्स यू एवरीथिंग, यू जस्ट फील लाइक यू आर प्लेइंग अ न्यू कैरेक्टर ऑल टुगेदर. येस, श्रद्धा और नानी दोनों ने दोनों कैरेक्टर्स को इतने बखूबी से उन्होंने प्ले किया है, तो उन्होंने ऑलरेडी बेंचमार्क वहाँ पे सेट किया था. बट हमारे डायरेक्टर सर गौतम सर ने, ही ऑलवेज टोल्ड मी, मृणाल, कुछ प्रेशर नहीं है. समटाइम्स आई यूज्ड टू फील लाइक थोड़ा एंजाइटी हो जाती थी कि सर श्रद्धा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट. ही सेड जस्ट रिलैक्स, दिस इज विद्या, नो वन हैज़ प्लेड विद्या बिफोर, सो यू डिसाइड हाउ यू वांट टू डू इट. मैं आपको इनपुट्स देता रहूँगा ऑब्वियसली. एंड यू नो, इट वाज सो लवली टू हैव शाहिद्स thoughts over what he thinks Vidya is like. My director, be my writer, you know, Siddharth and Garima. तो उनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ पूछती रहती थी हमेशा विद्या के बारे में. So Vidya is an amalgamation of what my writers think, what my co-actor think, and what my director thinks. So एक चीज़ होती है ना, मैथ्स के टेक्स्ट बुक में हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है. तो ये फॉर्मूला मतलब है, लेकिन एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए. सो कभी कभी यू नो, कोविड के दौरान जब 6-7 महीने का गैप हो चुका था, तो इट वाज वेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं. तो इट वाज रियली नाइस टू हैव अ तेलुगु वर्जन ऑफ इट, टू गो बैक एंड रीलिव द मोमेंट्स. और कहीं ना कहीं मुझे इट हेल्प मी, इट रियली हेल्प मी. सो आई डिड नॉट फील दैट प्रेशर एज मच. Shahid, this is Jyoti Venkatesh. Right this side. Hi Jyoti, how are you? Good Very to see you. nice to see you after such a long time in person in a function. I have this question. The last film you acted in was Kabir Singh, which was a remake of a Telugu film. And now after a big gap, we are seeing you in a remake of a Telugu film, Jersey. So, एक question ये है कि do you have a kind of a strike a balance between doing the films by selecting the bang on target, the potential hit films, and number two, when you as an actor act in these films, in what way you change your character compared to the original character in the original film? देखिए, पहले तो अगर मुझे नंबर्स ही चेज़ करने होते तो मैं वो वाली फिल्में करता जिन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में 150 करोड़ का बिजनेस किया है या इस तरह का बिजनेस किया है. ये वो फिल्में नहीं है एक्चुअली. अर्जुन रेड्डी न्यूकमर के लिए एक सक्सेसफुल फिल्म थी, बट इट हैड मॉडरेट नंबर्स कंपेयर टू अदर बिगर फिल्म्स. मैं फिल्में कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करता हूँ, यू नो. और मैंने जब कबीर सिंह की, तो उससे पहले मैंने कभी कोई रीमेक नहीं की थी. लेकिन जैसे यू नो, जब हम हैदर बना रहे थे, इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ हैमलेट, यू नो. और कई साल पहले शेक्सपियर ने कहा था कि यू नो, देयर इज नो स्टोरी दैट हैजंट बीन टोल्ड बिफोर, यू नो. सो शायद ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नो, आप किसी चीज़ को इंटेलेक्चुअली जब सोचते हो उसके बारे में, तो आप उसको इंटेलेक्चुअली देखते हो, यू नो. वो आपकी जगह है, वो आपका काम है. एज एन आर्टिस्ट मुझे चीज़ों को बहुत ओपननेस और फ्लूइडिटी के साथ देखना पसंद है. मुझे ये नहीं अच्छा लगता कोई मुझसे कहे ये सही है और ये गलत है. कौन हो आप मुझे बोलने वाले क्या सही है क्या गलत है? अच्छा लगा, मज़ा आया, दिल को छुआ. मेरे लिए फिल्में उतनी हैं, यू नो. जब मार्टिन स्कॉर्सेसी डिपार्टेड कर सकते हैं आफ्टर इन्फर्नल अफेयर्स, तो मैं कौन हूँ यार इतना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए. ओह, आई डोंट वांट टू डू एनी रीमेक्स. अरे यार, अच्छी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं. और
मैंने जब ये दो फिल्में देखी दे रियली लाइक हिट मी हार्ड यू नो. तो मुझे ऐसा लगा एज अ व्यूअर अगर मैं इस फिल्म को एंजॉय कर रहा हूँ तो, और मुझे एज एन एक्टर अगर ये रोल बहुत एक्साइटिंग लग रहा है तो आई विल बी लिमिटिंग माई सेल्फ बाय थिंकिंग लाइक दैट यू नो. सो जो मुझे दिल को ऐसा लगता है कि मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ मैं वो फिल्म कर लेता हूँ. और एक्चुअली कबीर सिंह के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये फिल्म नेक्स्ट नहीं करूँ, क्योंकि मेरे मन में भी ये था यार 2 रीमेक्स यार मैं नहीं यार. लेकिन मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी लगी नहीं जितनी अच्छी मुझे ये फिल्म लगी. और 3 महीने 4 महीने तक मैं सोचते ही रहा इस फिल्म के बारे में एंड हाउ आई फेल्ट व्हेन आई सॉ द फिल्म. और इस फिल्म का जो मैसेज है मैं चाहता था कि वो मैं शेयर कर सकूं लोगों के साथ. और अगर जैसे इस ऑडिटोरियम में 100-125 लोग बैठे हैं, वो अगर ये फिल्म देखें और इनमें से अगर 25 लोगों को भी वो फील हो जो मुझे फील हुआ, बिकॉज इट चेंज्ड मी फॉर एवर. जो इस फिल्म का मैसेज है इट चेंज्ड मी फॉर एवर. अगर वो 25 लोगों को भी फील हो गया मुझे लगेगा दैट आई डिड समथिंग अमेजिंग यू नो. सो दोज वर माई रीजंस. मैं आई डोंट ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. आई गो विथ हाउ आई फील. इफ आई लाइक समथिंग आई डू इट एंड दैट्स हाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड you know, because I like to go with my instinct now. One question is for Aman, the producer. What kind of strategy you had for release of the film when you made Jersey? Because within a week of another film on cricket, 83, Jersey is going to hit the screen. So ये इसका डिसीजन था. इसका पूरा प्रेशर अमन के ऊपर है. हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था. जैसे सब बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्रिकेट फिल्म नहीं है. Cricket is the character that he's playing, a cricketer, ex-cricketer, but film is about the heart. It's a human story, husband-wife की कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, and he happens to be a cricketer. So we're not even, if you notice in the whole promotion and everything, हमने कहीं cricket नहीं बेचा है. Yes, he is a cricketer by profession, but that is not the film. And that's how we presented it throughout, and that's why we're not looking at it as another cricket film. And sorry, as an exhibitor, I want to add, we have really a lot of inquiries about Jersey. People have been writing us. ये आपने बैकस्टेज क्यों नहीं बोला? 7 दिन पहले एक आदमी कितना नर्वस होता है. पहले बता देते बहुत अच्छा लगा ये सुन के. When are we opening अब advances? मुझे एक ग्लास पानी पिलाओ मैं रिलैक्स हो. ये सिनेपोलिस के हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो इनको भी खुद पता है. ईच फिल्म गेट्स ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली और कभी पिच सेम नहीं होता है. हाय शाहिद, प्रीति हियर फ्रॉम ANI. शाहिद आपकी आवाज़ खूबसूरत है बट आप दिख नहीं रही हैं. या हियर. कहाँ? ओ हाय हाय. आपके पीछे भी एक लड़का व्हाइट शर्ट में हाथ दिखा रहा है, उसका भी नाम प्रीति है? नो नो नो. बेटा मेरा नाम कबीर है. नाइस टू मीट यू. शायद आपसे जानना चाहूंगी, ये फिल्म क्रिकेट पे बेस्ड है और आज एक फिल्म रिलीज हुई है 83, वो भी क्रिकेट पे बेस्ड है. सो आपसे जानना ये चाहूंगी कि क्रिकेट को लेकर आपके थॉट्स क्या हैं? जी आपका सवाल 3 चीज़ें आपने पूछी. Yeah. आपका लास्ट पार्ट जो था इट्स काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड टू द फर्स्ट 2, बट आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दैट एज वेल. द प्रोमोज ऑफ 83 आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड आई वुड माई सेल्फ लव टू गो एंड सी द फिल्म. इट्स अबाउट व्हेन इंडिया वन द वर्ल्ड कप एंड इट्स दिस जर्नी दैट एवरीबॉडी वुड वांट टू सी. बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छी लग रही है. उसके 1 हफ्ते बाद एक और फिल्म आ रही है जर्सी, जो हमने बनाई है, जो बहुत इमोशनल फिल्म है और उसका बैकड्रॉप भी क्रिकेट है. तो लोग दोनों फिल्में जाके देखें, दोनों फिल्में एंजॉय करें. क्रिसमस पे भी लोग बाहर जाते हैं, न्यू ईयर पे भी बाहर जाते हैं. तो पीपल आर गोना स्टेप आउट, पीपल आर गोना वॉच मूवीज़. अगर फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी जगह ढूंढ लेती है यू नो. तो अब ऐसा ही टाइम है क्योंकि 2 साल से थिएटर्स काफ़ी देर के लिए बंद थे. तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं. कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं की इस डर से कि बड़ी सारी फिल्में साथ में आ रही हैं. बट आई थिंक अगर आप अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं और अगर आप पैशनेट हैं और अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है तो यू विल बिलीव कि अगर 1 हफ्ता ऑडियंस के पास है डिसाइड करने का कि उनको मेरी फिल्म कैसे लगती है, तो उसके बाद मेरे पहले कोई फिल्म आए, मेरे बाद कोई फिल्म आए, उसकी अपनी किस्मत है. हमारी फिल्म की अपनी किस्मत है. सो वी विश 83 ऑल द बेस्ट एंड वी रियली विश दैट इट डज वेल. बट 1 वीक लेटर वी आर रिलीजिंग एंड वी होप वी डू अमेजिंगली वेल टू. ऑलराइट. अच्छा शायद हाँ, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोना टेक. शायद आपसे जानना चाहूंगी कि न्यू ईयर प्लान क्या है आपके और क्या कुछ न्यू सेट आप करने वाले हैं गोल को लेकर? What New Year goals do I have? Yeah. I only want to hear New Year 6s, मैडम. गोल तो फुटबॉल में होता है, अभी हम क्रिकेट के जोन में हैं. Yeah. All right. You got your answer. शायद एक्चुअली एक सरप्राइज आपके और मृणाल के लिए. अभी आप किस्मत की बात कर रहे थे तो देयर इज डू यू लाइक सरप्राइजेस?
You love I surprises? don't like surprises. I can promise ये वाला पसंद आएगा. So आपका एक fan है बहुत बड़े. नैतिक जैन, can we have you on stage? So basically इन्होंने आपका और मृणाल का एक बहुत ही खूबसूरत sketch बनाया है, and he absolutely adores the two of you. So we thought that ये surprise आज हम आपको सबके सामने देंगे. Round of applause, guys. Come on. That's wonderful. That's Thank you, really, Naitik. really, really sweet. Just so that we can show it. Why don't you come, Runal? You can hold it. And Naitik, आप भी आओ ना. आप come in the middle. Come in the middle. आगे आ जाओ. That's really, really very nice. Thank you so much, Naitik. We really appreciate it. Naitik, thank you. हाँ हम रख लेंगे, वापस नहीं देंगे. नैतिक अच्छा रुको. नैतिक, लेकिन तूने एक ही बनाया है. तो क्या करें, काट दें हम लोग बीच में से. I know it. हाँ, मृणाल रखे कि मैं रखूं. मैं आपका रख लूंगी, आप मेरा रख लेना. हम every week हम exchange करेंगे. But thank you so beautiful. much. It's really, really nice. Thank you so much, Naitik. It's wonderful. Thank you, Naitik. Thank you. अच्छा नैतिक, I know तुम्हें ये मौका बार-बार नहीं मिलेगा शाहिद और मृणाल से मिलने का. So शाहिद, can I request you to please give him a surprise Yes, back of and course, sign a of course, jersey of for course, him? Of course. Absolutely, I would love to do that. अरे वाह. Come on, करो. Yep. नैतिक, मम्मी को बोल देना धोएंगे. All right. क्या बात है. All right. Thank you so much, Naitik, for being here with us. But we would request Shahid and Mrinal to stay back here because we have some winners who would love to get pictures done with you. So please, 5 more minutes.